Hello, everybody. I'm Bhavesh Jain here. Today, I'm going to start with Standard 6 History. Well, firstly, I'll give you a brief idea overview. Okay, how history is divided actually, how history of India is shaped. So, history of India is divided into three parts. Okay, first being the ancient India, Purani history. Second is the medieval India. Third is the modern India. Okay, so these are the three parts in which Indian history is divided. Okay. So I'm going to show you one file here. Just look at that. It contains all the timeline and all that stuff. So you'll be having a clear idea, okay, how history of India is divided. So you can see the timeline, Indian history timeline chart. So there are three phases: ancient, medieval, and modern. Timing is given prehistoric. So prehistoric means कि जब history लिखी भी नहीं गई थी, तब से ये prehistoric से to 700 AD. AD means Anno Domini. Then the medieval 700 AD to the year of 1857. And then the modern history starts from the 1857 to the 1947. So these are the year. And as you all know, 1947, India got its independence, and there was a partition of India into India and Pakistan. So detailed phases wise timeline is given. So timeline of ancient Indian history. So there are some ages known as Paleolithic age, Mesolithic, Neolithic, Chalcolithic. Then comes the Iron Age, and then the very very important civilization is Indus Valley civilization, which started from 2900 BC to 1700 BC. So almost around 1200 years this civilization lasted. Okay, then comes the Vedic period or the rise of Hinduism and all that, 6th century to 4th century, Vedic period 1500 to 600 BC. Then the Mauryan age came 6th century to 4th century. Then the golden age of India is known as Mauryan age, Gupta age. These all are good age of India. So 6th century, 4th century BC. Then the Gupta period 4 to 6. So these are the timelines. You have to understand this. Okay. Then came the age of Harsha and Chalukya Sabadami. This is not chronologically given, but yes, these are the main important things. This Indus Valley civilization, Mauryan age, Gupta age, and all that. So this is all you are going to study in this standard 6. ठीक है, यहाँ पे भी दिया है देखो. प्री हिस्टोरिक में क्या था कि 20 लाख ईयर वो हम लोग ने होमोसेपियंस वगैरह सब बन गए थे. ह्यूमन का एक्चुअली फॉर्मेशन हो गया था. होमोसेपियंस मीन अ प्रॉपर स्पाइनल कॉर्ड इरेक्टस वगैरह था एकदम प्रॉपर ऐसा. सो वहां से हम लोग स्टार्ट हो गए. फिर people started speaking language of Austric, pre-Dravidian language or Munda or Gondwi. Then come the Paleolithic. Highlight of this age was the fire was discovered. So humans started using the fire. Paleolithic age में. Then Mesolithic age में domestication of animals. उसके पहले domestication नहीं सीख पाए थे, but yes, in the Mesolithic age domestication of animals started. तो उस वजह से वो थोड़ा थोड़ा एग्रीकल्चर की तरफ भी मुड़ने लगे. देन न्यूलिथिक एज में प्रॉपर एग्रीकल्चर डिस्कवर्ड हो गया था, व्हील डिस्कवर हो गया था. सो दैट ऑल हेल्प देम टू सस्टेन देयर लाइफ. इंडस वैली सिविलाइजेशन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. It started around 3300 BC and it flourished between 2700 to 1900 BC. I told you as a Indus Valley civilization बहुत बड़ा था, but major was it flourished between 2700 BC to 1900 BC. So this is the very important thing. अच्छा, BC stands for before Christ. Okay. Then comes the Chalcolithic age. यहाँ पे copper basically use होना start हो गया था. So copper was the first metal used by humans on the planet Earth. Then came the what? Iron age. So iron, definitely the age itself says the use of iron started beginning. Okay. And यहाँ पे Jainism हुआ, Buddhism हुआ, महाजनपदास, जनपदास and all that started. चलो फिर उसके बाद आया मौर्यन एम्पायर. तो मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य was the first leader. Then Bindusara, then Ashoka. So you might have heard all this name. Ashoka is a very famous king and Chandragupta is a very famous king. So ये सब आए थे. उसके बाद then came Sunga, Kanva, Satvanas, Indo-Greek, Sakas and Kushnas. Then Sangam age is not that important. Chola, Cheras and Pandavas. Gupta again it's very very important. Ancient Indian Empire था ये. Then Samudragupta is an Indian Napoleon. Samudragupta is very very important king over here. Okay. नेपोलियन बोनापार्टे क्या था? फ्रांस का था. तो वैसा इंडियन नेपोलियन कौन थे? समुद्रगुप्ता. The deterioration of imperial Guptas, Magdas and its capital Patliputra. Okay. तो पोस्ट गुप्ता ये सब हो गया कि उनका फॉल हुआ. देन राजपूत सेना एंड चौहान आ गए उसके बाद.
फिर स्टार्टेड मिडिवल इंडिया। सो ये बीच की इंडिया, मिडिवल इंडिया में क्या हुआ, AD 700 ट्राइपैट्रिएट स्ट्रगल हो गया, किनके बीच में, पृथ्वीराज पलास एंड राष्ट्रकूटास अटैक ऑफ, फिर मोहम्मद बिन कासिम हो गया, फिर उसके बाद मोहम्मद गजनी हो गया, मोहम्मद घोरी हो गया। ओके, मेजर साउथ इंडियन किंगडम्स क्या थे, विजयनगरा और बमिनी। फिर दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो गई 1206 एडी में, 1526 एडी तक ये चली, लगभग ऑलमोस्ट अराउंड 330 इयर्स। तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ क्या, स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद आया खिलजी डायनेस्टी, है ना, अलाउद्दीन खिलजी नाम सुना, फिर उसके बाद आया तुगलक, फिर सैयद, एंड देन केम लोडी डायनेस्टी। सो देयर वर 5 डायनेस्टीज, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोडी। So very very important in the Indian history to remember all this. Then मुगल्स आए, मुगल्स में सबसे पहले कौन आया, हुमायूं, अकबर, बाबर, ये सब चलते रहा, ठीक है। बाबर सबसे पहले आया, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा शाहजहां, वगैरह वगैरह सब चलता रहा। ओके, then it started, all started with the independence movement. The first war of Indian independence 1857 में हुआ था। उसके बाद गांधी जी आए तो 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, then finally India got its independence in the year 1947, then became partition of India. So this is the whole structure of independent, whole structure of Indian history divided in 3 major parts: ancient, medieval, and the what, modern Indian history. So I hope you got an overview. तो अपन यही पढ़ने वाले हैं। सो 6th स्टैंडर्ड में इट्स ऑल अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। तो 6th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ना है हमको, सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री। तो 6th स्टैंडर्ड का ये सिलेबस आपके सामने है। सो दिस इंडेक्स सेज अबाउट कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्या था पुराने टाइम में और उसकी हिस्ट्री क्या है। फिर उसके बाद सोर्सेस क्या है हिस्ट्री के, मैंने हिस्ट्री जो लिखी, सी हिस्ट्री डेट्स बैक टू 1000 ईयर, 2000 ईयर, 3000 इयर्स बैक। तो 3000 साल पहले तो कोई नहीं था ना जो आज हिस्ट्री लिख रहा है। सो उनको क्या सोर्सेज मिले सो दैट दे आर एबल टू राइट दी हिस्ट्री, करेक्ट। सो वो सोर्सेस आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। फिर वो मैंने बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग दूसरा नाम भी बोल सकते हैं हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन। देन केम द वैदिक सिविलाइजेशन, देन रिलीजियस ट्रेंड्स इन एशियन एजेस में जैनिज्म आया, बुद्धिज्म आया, फिर जनपदास एंड महाजनपदास, ये सब इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सिस्टम हुआ करते थे, हमको पढ़ना है ये सब। फिर मौर्य पीरियड में इंडिया कैसा था, मौर्य पीरियड के बाद क्या हुआ, देन एंशिएंट किंगडम्स, और साउथ में क्या क्या निकले। साउथ में देखो काफी बड़े रूलर्स थे, क्योंकि नॉर्थ में तो मिडिवल इंडिया स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे डायनेस्टी वगैरह लग जाती है, खिलजी, तुगलक, लोडी, वो सब लग जाता है, ठीक है। उसके बाद ओके, फिर एंशिएंट इंडिया में क्या क्या कल्चर थे, क्या फोक्स था, क्या ट्रेडिशन थे, क्या रीति रिवाज थे, तो वो सब पढ़ना है आपको। फिर एंशिएंट इंडिया एंड द वर्ल्ड का क्या हालचाल था। ओके, so this is how you are going to study with chapter 6, standard 6. Okay, so first chapter देख लेते हैं हम लोग, the Indian subcontinent and the history. So यहाँ पे क्या बात चल रही है, तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट अगर मैं बोलता हूँ, so इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक जियोग्राफिकल एरिया है जिसमें आज की प्रेजेंट डे की कौन सी कंट्रीज आती है, मैं बताता हूँ। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट तो डेफिनेटली कौन रहेगा, इंडिया। इस वजह से इस सबकॉन्टिनेंट का नाम इंडियन सबकॉन्टिनेंट रखा गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन है यहाँ पे, इंडिया। अब इंडिया की आपको नेबरिंग कंट्रीज देखनी है। तो नेबरिंग कंट्रीज इंडिया के कौन है, सबसे पहले तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट के हिस्से में आता है, ठीक है। साउथ एशिया में जो भी आता है, साउथ एशिया की कंट्रीज जितनी भी है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का ये बन जाती है हिस्सा। ओके, तो पर्टिकुलर ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट का हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आपको ये देखना है कि ये हिस्ट्री क्यों बनी। तो उसके लिए आपको ज्योग्राफिकल कंडीशंस याद होनी चाहिए कि इंडिया की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या है आज की तारीख में, इस वजह से मेरे यहाँ पे हिस्ट्री बनी। लोग आए बाहर से, इन्वेजन हुआ, लोग इंडस घाटी, सब इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास क्यों रहने लगे। तो एवरीथिंग इज समवेयर रिलेटेड टू ज्योग्राफी। तो आपको कहीं ना कहीं हिस्ट्री को कनेक्ट करना किसके साथ, ज्योग्राफी के साथ। तो कैसे कनेक्ट करेंगे हम लोग ये देखते हैं। तो हम लोग ने 5th स्टैंडर्ड पढ़ा कि भाई that there is a close relation between man and his environment. We saw how the changes in the lifestyle of the early man and his technology were related to the changes in his surrounding. ठीक है, अब देखो टेक्नोलॉजी चेंज हुई या फिर सराउंडिंग चेंज हुआ, उसकी वजह से मेरा क्या चेंज हुआ, लाइफस्टाइल चेंज हो गया पूरा, ठीक है। जैसे सराउंडिंग चेंज हो रहा है उसकी वजह से मेरा लाइफस्टाइल भी क्या हो गया, चेंज हो गया। और हमने हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन देखा फ्रॉम द स्टोन एज। स्टोन एज सबसे पहला एज आया था, फिर स्टोन एज के बाद आया आयरन एज, कॉपर एज, चैल्कोलिथिक एज वगैरह वगैरह। उसके बाद क्या है, एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, सो history is nothing but the coherent account of significant past events in the progress of human culture. It's a very important line. History is a coherent मतलब comprehensive या फिर complete account of the significant important past events
तो पास्ट में जो हुआ है उसका इंपॉर्टेंट लेखा जोखा क्या है, हिस्ट्री। ओके, तो हिस्ट्री के मेन 4 पिलर्स है, यू हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री। हिस्ट्री के 4 पिलर्स है, टाइम, प्लेस, सोसाइटी, और क्या आएगा, टाइम, प्लेस, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स आर द 4 मेजर पिलर्स ऑफ द हिस्ट्री। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वापस स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आई वाज सेइंग कि हिस्ट्री इज नथिंग बट द कोहेरेंट अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट पास्ट इवेंट्स। ओके, तो ये आप चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। हिस्ट्री के 4 पिलर मैंने बताया, टाइम, प्लेस, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स। टाइम, प्लेस, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। तो उसमें से जो प्लेस है, वो रिलेटेड टू क्या है, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। सो हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्या है, इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देख लो कि आपकी जो डाइट होती है या फिर आपका जो क्लोथिंग होता है, हाउसिंग होता है, ऑक्यूपेशन होता है, इनफैक्ट एनीथिंग व्हिच यू टेक, ऑल ह्यूमन लाइफ इन एनी रीजन डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन इट्स ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ रहे हो, आपकी डाइट, खाना पीना, क्लोथिंग क्या पहन रहे हो, जैसे ज्यादा गर्मी तो आप कॉटन यूज करोगे, गर्मी नहीं है, ज्यादा ठंडी है तो आप स्वेटर यूज करोगे, वुलन क्लोथ यूज करोगे, क्यों, तो डिपेंडिंग ऑन द जियोग्राफिकल रीजन आपका क्लोथिंग चेंज हो रहा है, डाइट चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अगर पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं तो उसमें क्या यूज करते हैं उन लोग, इन रिलीजन्स पीपल डिपेंड मोर ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग फॉर देयर फूड, क्योंकि देखो हिली रीजन्स पे जमीन तो इतनी फर्टाइल होगी नहीं डेफिनेटली, तो वहाँ क्या गेहूं चावल तो नहीं उगेंगे, तो वहाँ क्या करोगे आप, तो वहाँ जितने भी एनिमल्स है उनको आप पकड़ोगे, उनको ही खाओगे, उनसे ही जो भी करना है, गैदरिंग वैदरिंग वही करना है, ठीक है। फिर उसके बाद और भी चीजें, तो क्लाइमेट है, रेनफॉल है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड फ्लोरा एंड फौना, ये सब जो चीजें है ये हमारा सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, मतलब जीने के लिए सोर्स है ना। जैसे क्लाइमेट हो गया, रेनफॉल हो गया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया, फ्लोरा एंड फौना हो गया, तो ये सब क्या है, मेरा सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। ओके, क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। द लाइफस्टाइल एंड द कल्चर ऑफ रीजन डेवलप्स विद देयर सपोर्ट, जितना भी मेरा लाइफस्टाइल है या फिर जो भी मेरा रीजन का कल्चर है वो किससे, कौन से सपोर्ट, किसके सपोर्ट से होता है, या तो क्लाइमेट, या तो रेनफॉल, या तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, या तो फ्लोरा एंड फौना। ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। सो मैन और एनवायरनमेंट दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। आप इन्वायरमेंट को और ज्योग्राफी को अलग अलग नहीं कर सकते, आपकी डाइट, क्लोथिंग, आप क्या 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 ऑक्यूपेशन है, वो सब किससे डिसाइड होगा, आपका क्लाइमेट क्या है, रेनफॉल क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और फ्लोरा fauna, flora fauna, plants and animals, flora fauna मतलब plants and animals। चलो, human settlements have flourished wherever the means of living are plentiful, है ना, जीने के अगर जरिए बहुत ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट वहाँ अच्छा है, रेनफॉल ठीक ठाक है, ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वहाँ अच्छा हो रहा है, फ्लोरा एंड फाउना वहाँ अच्छा है, तो अगर ये सब चीजें अच्छी रहेगी तो वहाँ पे मेरा लाइफस्टाइल भी अच्छा होगा, कल्चर भी अच्छा होगा, और वहाँ पे क्या होगा, मेरे सेटलमेंट्स फ्लरिश होगा। सेटलमेंट्स फ्लरिश होगा तो पहले छोटा सा गाँव होगा, उसके बाद वो एक छोटा शहर बनेगा, छोटा शहर के बाद एक बड़ा शहर बनेगा, सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी, मुंबई जैसा शहर। मुंबई भी क्या है, एक दिन में तो नहीं बन गया ना, मुंबई तो ऐसे ही धीरे धीरे डेवलप हुआ, बट ओके। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस सेटलमेंट डेवलप फर्दर इनटू विलेजेस एंड टाउन्स, और टाउन्स का आगे किससे बढ़ता है, सिटीज से। ओके, बट कभी कभी डिग्रेडेशन भी होता है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, डिग्रेडेशन भी हो जाता है। क्यों होता है डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट के रीजन, देखो अगर इन्वायरमेंट जीने का भी तरीका दे रहा है तो इन्वायरमेंट की वजह से हमारी लाइफ भी खत्म हो सकती है। इन्वायरमेंट हो गया, या फिर सूखा पड़ गया, या फिर सूखा नहीं तो बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई, इन्वेजन हो गए, मतलब फॉरेनर्स ने अटैक कर दिया वगैरह वगैरह, तो हमारे पास ये सब चीज की कमी हो जाएगी, ठीक है। क्लाइमेट अगर खराब हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगा, है ना, रेनफॉल अगर ज्यादा हो गया तो बाढ़ आ जाएगी, मैं नहीं जी पाऊंगा। पीपल इस वजह से क्या करते हैं, वो सेटलमेंट्स को छोड़ देते हैं, वहां से चले जाते हैं। तो आप देख रहे हो ज्योग्राफी कितना इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी अगर सही रहा तो ही मैं रह पाऊंगा, ज्योग्राफी सही नहीं है तो मुझे वहां से जाना पड़ेगा। ओके, तो उसी हिसाब से ज्योग्राफी के फीचर्स आपको जानना है जरूरी है इंडिया के, कि क्या क्या ज्योग्राफी का फीचर्स है इंडिया का। तो देखो इंडिया का सबसे पहले तो आप मैप दिमाग में रखना कि हमेशा इंडिया का मैप क्या है। तो इंडिया का मैप जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में क्या है, तो नॉर्थ में सबसे पहले हिमालय है, आपने देखा होगा नॉर्थ पूरा हिमालय से पहाड़ों से घिरा हुआ। ईस्ट में डेफिनेटली पानी का एक बॉडी है जिसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी, ये साइड में, मैप के ये साइड में। और साउथ में हमेशा क्या आएगा, इंडियन ओशन। और वहाँ पे एक दो आइलैंड्स भी हमारा, एक अंडमान एंड निकोबार और एक लक्षद्वीप, उसके अलावा सारा इंडिया क्या है, कॉन्टिजियस, मतलब एक साथ जुड़ा हुआ है। बट सिर्फ एक लक्षद्वीप है और अंडमान एंड निकोबार जो इंडिया से थोड़ा सा दूर है, अलग है, इंडिया के मेन लैंड में नहीं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखने की, नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में हिमालय, ईस्ट में क्या है, बे बंगाल, वेस्ट में क्या है, इंडियन ओशन, साउथ में क्या है, वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी, और साउथ में क्या है, इंडियन ओशन।
ये दो आइलैंड्स अलग अलग, अंडमान एंड निकोबार और दूसरा क्या है लक्षद्वीप आइलैंड. We have to take into account this region henceforth refers to as ancient India. So before 1947, today's Pakistan and Bangladesh were also part of India. मैंने आपको बता दिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी थी, बट इंडिया 1947 के पहले इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों मिलके था. इंडिया बहुत बड़ा था. ओके, तो ये देखो हिमालयस हो गया नॉर्थ. फिर एक प्लेन्स है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स. मैं आपको बताऊंगा मैप में ये कहाँ है. इंडिया के पास डेजर्ट भी है, थार डेजर्ट. इंडिया के पास डेक्कन प्लेटू है जो सदर्न साइड में है. फिर एक कोस्टल रीजन भी है इंडिया का, डेफिनेटली 3 साइड से वाटर है तो कोस्टल रीजन्स में होंगे. फिर आइलैंड्स भी है, बहुत सारे आइलैंड्स भी है. उसमें से दो मेन प्रोमिनेंट आइलैंड अंडमान और निकोबार एंड लक्षद्वीप है. तो सबसे पहले हिमालयस पढ़ लेते हैं. हिमालयस में हिंदू कुश रेंज और हिमालय रेंज. एक तो हिंदू कुश रेंज हो गई और दूसरी कौन सी रेंज हो गई, हिमालय रेंजेस. ओके, फिर दिस वॉल हैज सेपरेटेड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द डेजर्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया. ये अगर सपोज माउंटेन है तो ऊपर क्या है सेंट्रल एशिया का डेजर्ट है, नीचे मेरा क्या इंडिया है. However, एक लैंड रूट बीच में था ड्यू टू खाइबर एंड बोलान पासेस. देखो पासेस क्या होता है, माउंटेन के बीच में से अगर थोड़ा सा एक रास्ता हो, ठीक है, वो रास्ता नेचुरली मेड नहीं हो, लेकिन इंसानों ने जो बनाया है यहाँ से जाने के लिए बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में से, तो वो वहां से मैं क्रॉस कर सकता हूँ. ठीक है, अदरवाइज हिंदू कुश रेंज या फिर हिमालय रेंज आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेवल. वहां पे से मैं ट्रेवल नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, बहुत बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस है वहाँ पे. बट वहां पे दो पास बने हुए, एक तो खाइबर पास और एक बोलन पास. तो खाइबर पास और बोलन पास से ही इंडिया में लोग आते थे, वेस्ट से, सेंट्रल से, साउथ से, आपको जहां बोलना है. ये दो चीजों के दो पास की वजह से ही आते थे. और ये खाइबर पास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. खाइबर पास आप लोग नीचे देख भी सकते हैं, कैसा दिखता है पास. तो देख रहे हो आसपास पूरा माउंटेन है, ये पूरा माउंटेनियस रीजन है, लेकिन बीच में से एक छोटा सा रास्ता गया, ये इंसानों ने बनाया. देख रहे हो ये पूरा सीमेंटेड रास्ता है, तो ये क्या है खाइबर पास. ओके, तो इसको सिल्क रूट भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ से ही सिल्क रूट जाता था. क्योंकि देखो अगर चाइना है, चाइना को वेस्टर्न देशों से क्या करना था, कॉटन का सप्लाई करना था, सिल्क का सप्लाई करना था, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का सप्लाई करना था. तो चाइना इंडिया के वो साइड में ऊपर है, तो वो जाएगा कैसे, तो इंडिया के इस साइड से ही जाएगा. तो वो खाइबर पास से ही जाता था हमेशा. ओके, तो इसलिए ये रूट से अगर सिल्क का ट्रेडिंग होता था बहुत ज्यादा, इसलिए ये रूट का मैं क्या बोल दिया, सिल्क रूट. समझ रहे हो. तो वेस्टर्न एशिया में अगर जाना है तो सिल्क रूट से ही जाता था चाइना फॉर ट्रेडिंग सिल्क, इसलिए वो रोड का नाम हो गया सिल्क रूट या फिर सिल्क रोड. ओके, तो यही रूट की वजह से फॉरेन इन्वेडर्स भी आए थे एंशियंट इंडिया पे. देखो इंडिया में अगर जो भी हुआ है इन्वेजन, वो वेस्टर्न की साइड से हुआ है, मतलब जहाँ से पाकिस्तान है वो इस साइड से लोग आए, क्योंकि ये साइड में तो पूरा हिमालय, यहाँ से आना नामुमकिन है एकदम. समझ रहे हो, तो उस हिसाब से. चलो आगे बढ़ते हैं. और फिर सेकंड है प्लेन्स ऑफ सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र. देखो इंडिया में तीन बहुत इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है, जिसका नाम है एक तो गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, तीसरा है इंडस रिवर सिस्टम. यहाँ पे देखेंगे सिंधु जो लिखा है, सिंधु इज अ संस्कृत वर्ड, बट एक्चुअली में इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे इंडस. तो एक इंडस रिवर हो गया, एक गंगा रिवर हो गया और एक ब्रह्मपुत्र रिवर. तो ये तीन रिवर सिस्टम. तो ये रीजन क्या है, थ्री बिग रिवर्स के, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज मतलब एक बड़े रिवर होता है और उसमें जो छोटा रिवर मिलते जाता है मिलते जाता है मिलते जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज. ओके, तो ये रीजन कहाँ से है, तो ये रीजन है सिंध पंजाब इन दी वेस्ट टू द प्रेजेंट डे बांग्लादेश. सो वेस्ट से लेके टिल द डेट ऑफ बांग्लादेश, इंडिया के पाकिस्तान से लेके, मतलब जो पहले पाकिस्तान था और आज यहाँ पे बांग्लादेश से लेके मेरा ये तीनों रिवर होता था. तो सबसे पहले यहाँ पे इंडस होता है, बीच में गंगा है और साइड में क्या है ब्रह्मपुत्र. ठीक है, मैं आपको मैप में भी बताऊंगा, डोंट वरी. बट यहाँ पे फिलहाल एक बार इमेजिन करो कि एकदम पाकिस्तान की साइड पे क्या है इंडस रिवर, इंडिया में एक्चुअल में क्या है गंगा. गंगा रिवर का नाम सुना ही होगा इंडिया में. और चाइना की साइड में क्या होगी थोड़ा ब्रह्मपुत्र रिवर, जो अल्टीमेटली जाती है बांग्लादेश में. ओके, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों कहाँ जाती है, बांग्लादेश में. ओके, इट वाज, अच्छा तो ये देखो पानी इतना इंपॉर्टेंट है कि इट वाज इन दिस रीजन दैट द अर्लीस्ट इंडियन सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पा एंड द लेटेस्ट स्टेट्स एंड एम्पायर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया एमर्ज्ड. आप देख रहे हो जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑफ कोर्स पानी है. तो पानी की वजह से ही मेरी सिविलाइजेशन डेवलप हुई, क्योंकि पहले लोग एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंड होते थे, कुछ और आता नहीं था उनको, तो एग्रीकल्चर भी उन्होंने सीखा. तो एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वाटर. तो वाटर कहाँ मिलेगा आपको, रिवर से. इस वजह से जितनी भी सिविलाइजेशन हुई है पुरानी, चाहे वो मेसोपोटामियम हो, चाइना की येलो रिवर के पास हुई, मिडल ईस्ट में नाइल रिवर के पास हुई, अफ्रीका में नाइल रिवर के पास हुई, मेसोपोटामियन रिवर के पास हुई, तो ये जितनी भी है इंडिया में गंगा रिवर, इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर के पास हुई. इस वजह से रिवर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
थार डेजर्ट, थार डेजर्ट का नाम सुना होगा। थार डेजर्ट सबसे इंपॉर्टेंट राजस्थान में होता है। इसका मतलब थार डेजर्ट का ऑलमोस्ट 80% कहाँ पे है? राजस्थान में। एकदम थोड़ा सा पार्ट हरियाणा में, हरियाणा में ना के बराबर 5% का पार्ट होगा, और गुजरात में ऑलमोस्ट 10-15% है वहाँ पे। ठीक है, थोड़ा बहुत टुडेस पाकिस्तान में भी है। पहले तो देखो इंडिया सब एक साथ, इंडिया पाकिस्तान पूरा एक थे, फिर बाद में पार्टीशन हुआ 1947 में। बट ये तो पुराने हिस्ट्री की बात चल रही है, जब इंडिया पाकिस्तान एक थे, तो तब थार डेजर्ट राजस्थान, हरियाणा, फिर आज का थोड़ा पाकिस्तान में भी है। ओके, तो डेजर्ट के साउथ नॉर्थ में क्या है देखो, तो डेजर्ट के साउथ नॉर्थ में है सतलुज रिवर टू द नॉर्थ, सतलुज रिवर, ठीक है, ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। फिर अरावली रिवर टू द ईस्ट है, अरावली माउंटेन टू द ईस्ट। फिर एक रन ऑफ कच्छ टू द साउथ जो गुजरात में है, और एक इंडस जो मेन रिवर है जिसमें ये सतलज रिवर मिलती है। तो घाघर रिवर जो पहले होता था, आज के जमाने में है नहीं, ये सूख चुकी है। तो घाघर रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन हिमाचल प्रदेश रिचेस द थार डेजर्ट, ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज हकरा इन पाकिस्तान। कौन? घाघर रिवर, बट अभी है नहीं, इट हैज नाउ व्हाट ड्राइड अप। देखो ऐसा होता है कि कभी कभी जो रहता है रिवर का कोर्स जो रहता है वो चेंज हो जाता है, या तो फिर जहाँ से रिवर बह रही है वो सूख जाता है, ऐसा होता है। फिर एक डेक्कन प्लेटू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेक्कन प्लेटू जो ईस्ट और वेस्ट कोस्ट है इंडिया का, मैं आपको सब मैप में बताऊंगा, डोंट वरी। बट ईस्ट और वेस्ट कोस्ट जो है इंडिया का, वहां पे डेक्कन प्लेटू उनके बीच में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये अरेबियन सी टू इट्स वेस्ट है, डेफिनेटली इंडियन ओशन टू इट्स साउथ है, और बे ऑफ बंगाल क्या है? टू इट्स ईस्ट। तो तीनों साइड से पानी, अगर तीनों साइड से पानी रहता है तो इसको मैं क्या बोलता हूँ? पेनिनसुला। तीनों साइड से अगर पानी रहेगा तो इसको मैं क्या बोलता हूँ? पेनिनसुला। तो मेजर पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला इज व्हाट? ऑक्यूपाइड बाय डेक्कन प्लेटू। तो इंडियन पेनिनसुला में क्या है? डेक्कन प्लेटू। देखो डेक्कन प्लेटू के नॉर्थ में क्या है? विंध्या एंड सतपुड़ा आर लोकेटेड टू द नॉर्थ। ये माउंटेन रेंजेस है, विंध्या और सतपुड़ा आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगी। फिर सह्याद्री माउंटेन आर टू इट्स वेस्ट। सह्याद्री माउंटेन महाराष्ट्र से शुरू होती है, जो जाती है पूरा पूरा केरला तक, पूरा उसको वेस्टर्न घाट्स में बोलता हूँ। फिर सह्याद्री जो है, वेस्टर्न घाट्स जो है, उसके अगर कोस्टल रीजन की मैं बात करूँ तो देर आर टू रीजन, एक कोंकण और एक मलाबार। तो कोंकण मतलब पूरा महाराष्ट्र का रीजन और गोवा का रीजन, और उसके बाद नीचे केरला और कर्नाटका के रीजन क्या? मलाबार रीजन। सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर माउंटेनस ईस्टर्न साइड पे क्या है? वो ईस्टर्न घाट्स। देखो अगर वेस्टर्न साइड पे है तो वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न साइड पे है तो वो क्या है? ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न घाट्स पे कोस्ट है दो, एक कोंकण और एक मलाबार। कोंकण महाराष्ट्र और गोवा के आसपास है, मलाबार कर्नाटका और केरला के आसपास है। फिर डेक्कन प्लेटू में क्या है? बहुत सारी फर्टाइल लैंड है, इस वजह से यहाँ पे बहुत सारा किंगडम हुआ, जैसे मौर्य एम्पायर बहुत फेमस है। उसके बाद दूसरे भी और छोटे छोटे स्मॉलर एम्पायर्स भी फ्लरिश हुए थे। फिर कोस्टल रीजन की मैं बात कर लेता हूँ, ऐसे रीजन जिसके कोस्ट पे क्या, मतलब जिसका किनारा पानी के साइड बसा हुआ है। तो अगर पानी के साथ है तो यहाँ पे ट्रेड कैसे होगा? कैरिड ऑन बाय डेफिनेटली सी। सी के जरिए मैं बिजनेस करूंगा ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो आज के जमाने में हो रहा है वो स्टार्टिंग से चलता हुआ आ रहा है। ओके, therefore India has developed contact and interaction with the foreign cultures and people of this and people at the seaport. seaport के वजह से मैंने फॉरेन कल्चर्स के साथ क्या किया? कांटेक्ट किया। ओके, फिर उसके बाद धीरे धीरे लैंड रोड डेवलप। देखो पहले रोड बनाने का कैपेसिटी तो था नहीं लोगों के पास, ठीक है, रोड कैसे बनता है वो सब नॉलेज नहीं था। बट भगवान ने ऑलरेडी एक रोड ऑलरेडी दिया था ना। कैसे? रोड क्या है? मतलब जो पानी जा रहा है, पानी भी कितना लंबा लंबा चलता है। अगर पानी सपोज मैं ऑब्जर्व करूँ, तो एक रिवर एक स्टेट से निकल के कम से कम 4 स्टेट में जाएगी, तो कम से कम 1000-2000 किलोमीटर हो गया। तो ऑलरेडी मुझे रेडीमेड एक रूट मिल रहा था, वो पानी। तो इंसान ने पानी के जरिए बहुत सारा ट्रेड किया स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद जैसे जैसे नॉलेज बढ़ी, टेक्नोलॉजी बढ़ी, डेवलपमेंट हुआ, तब उन्होंने रोड बनाना किया स्टार्ट, ठीक है। बट आज भी इंपॉर्टेंट ऑफ सी रूट डिड नॉट डिमिनिश, है ना। आज भी अगर मेरे को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है और गुड्स को लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा? शिप से ही भेजता हूँ उसको आज भी। तो ये था कोस्टल रीजन, ठीक है। कोस्टल रीजन हेल्प इन ट्रेड रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस में कोस्टल रीजन का काफी काम था। फिर आइलैंड से मैंने बताया दो इंपॉर्टेंट आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। और लक्षद्वीप कहाँ है? अरेबियन सी में। तो देखो अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में, लक्षद्वीप अरेबियन सी में। ओके, तो लोकेशन भी है वो काफी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये, मैं आपको मैप में सब दिखाता हूँ। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी या फिर हैंडबुक ऑफ द रेड सी, यहाँ पे जो है ग्रीक सेलर ने बताया है हमारे इंडिया के बारे में, जो इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों शामिल है। तो देखो ये पूरा मैप है, और भी डिटेल मैप में दिखाता हूँ। ये हिंदू कुश माउंटेन रेंज, ये पूरी हिंदू कुश ये साइड की, पूरा ये हिमालयन माउंटेन रेंज, देख रहे हो ये जो लाइन। तो ये जितने भी है ये सब रिवर है ब्लू में, ये देखो इंडस रिवर, सतलज रिवर,
घाघर रिवर जो अभी नहीं है बट पहले दिखाया है, पहले का मैप है इसके लिए। ब्यास रिवर, फिर ये गंगा रिवर देख रहे हो, फिर उसके अलावा ये ब्रह्मपुत्र रिवर, ये रहा, दिस इज ब्रह्मपुत्र रिवर, चाइना की साइड से आई। ये बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी, ये लक्षद्वीप आइलैंड, ये रहा इंडिया के जस्ट बाजू में लक्षद्वीप आइलैंड। ये मेरा वेस्टर्न कोस्ट, ये मेरा ईस्टर्न कोस्ट, फिर ये मेरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये वाला अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, फिर ये श्रीलंका यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखो, ये ब्रह्मपुत्र यहाँ पे जा रही है, गंगा यहाँ से शुरू हुई यहाँ पे जा रही है, अल्टीमेटली सब यहाँ पे जा रही है बे बंगाल में। इंडस कहाँ जा रही है? अरेबियन सी में। ये पूरा का पूरा जो ब्राउन कलर है ये मेरा डेक्कन प्लेटू है। यहाँ पे क्या है? सह्याद्री माउंटेन है, जिसको मैं बोलता हूँ वेस्टर्न घाट्स। ये क्या है? ईस्टर्न घाट्स। वेस्ट में इसलिए वेस्टर्न घाट्स, ईस्ट में इसलिए ईस्टर्न घाट्स। ये पूरा क्या है? हमारा थार डेजर्ट। ये क्या है? पूरा थार डेजर्ट, जो थोड़ा पाकिस्तान में है, थोड़ा सा गुजरात में है, पूरा राजस्थान है, और ये छोटा सा पार्ट यहाँ पे क्या हरियाणा में भी है। ठीक है, आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। अब देखो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया आज का क्या क्या है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया टुगेदर फॉर्म द रीजन ऑफ साउथ एशिया। और साउथ एशिया में सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या था? इंडिया। और डेफिनेटली इंडिया आज भी इंपॉर्टेंट है। इस वजह से उसको मैं बोलता हूँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कंसिडरिंग द एक्सपेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया इन दिस रीजन, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन स्प्रेड मेनली द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हड़प्पन सिविलाइजेशन देखोगे तो यहाँ पे हुआ डेवलप। ये जो है ना, ये खाइबर पास क्रॉस करते ये पूरा यहाँ से इंडस रिवर के आसपास पूरा ये इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ यहाँ पूरा हुआ था। तो उसको मैं बोलता हूँ हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। चाइना एंड म्यांमार भले नेबरिंग कंट्री है बट आर नॉट पार्ट ऑफ साउथ एशिया और सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, चाइना आता है ईस्ट एशिया में और म्यांमार आता है साउथ ईस्ट एशिया में। हवेवर हमारा कल्चर और ट्रेड रिलेशंस पहले भी था और आज के जमाने में भी चाइना और म्यांमार से हमारा ट्रेड रिलेशंस है। ओके, और वो हमेशा इंपॉर्टेंट प्लेस इन स्टडी ऑफ हिस्ट्री एशियन हिस्ट्री रहा है, क्योंकि चाइना डेफिनेटली इट्स अ बिगर कंट्री, तो वो हिस्ट्री में रिलेशन रहेगा। तो ये पूरा चाइना ही है, ये पूरा, और ये म्यांमार है। ओके, तो देख रहे हो पास ये पूरा हिंदू कुश रेंज है, बट एक छोटा सा एरिया यहाँ पे खाइबर पास हो गया, और ये छोटा सा एरिया यहाँ पे क्या हो गया? बोलन पास। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ये 6 चीज आपको ध्यान रखनी है इंडिया की हिस्ट्री में। ये 6 जोग्राफिकल पार्ट है। हिमालय नॉर्थ में, फिर उसके नीचे आता है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु मतलब इंडस, गंगा ब्रह्मपुत्र। फिर थार डेजर्ट आता है जो राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में भी है। डेक्कन प्लेटू जो आता है जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के ऐसे बीच में है अपना पूरा। कोस्टल रीजन हो गए मेरे, और 2 आइलैंड्स हो गए। आइलैंड्स लक्षद्वीप अरेबियन सी में, अंडमान निकोबार जो कहाँ पे है। ठीक है, आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। एक बार खाली मैप देख लेते हैं हम लोग। यू कैन सी द मैप, ये इंडिया का मैप है। देखो सबसे पहले ये मैं थार डेजर्ट दिखा देता हूँ। ये दिख रहा है आपको? ये प्लेन प्लेन एरिया, इट्स ऑल थार डेजर्ट। ये तो पूरा पाकिस्तान, ये पूरा राजस्थान। देखो यहाँ पे छोटा सा पार्ट हरियाणा का दिख रहा है, ये देखो हरियाणा की ये बॉर्डर है, बट यहाँ पे भी थोड़ा सा डेजर्ट गया है। देन डेफिनेटली दिस इज गुजरात का बॉर्डर, और यहाँ पे पूरा थार डेजर्ट है। ठीक है, तो ये देखो ये मेरा है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये दिख रहा है ये वाला, ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, चलो फिर यहाँ पे आपको दिखेगा लक्षद्वीप आइलैंड्स, दिख रहा है? तो लक्षद्वीप, ये देखो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ये कितने छोटे दिख रहे हैं? मैप में इतना जूम इन करने के बाद भी नहीं दिखते। इट्स वेरी वेरी ग्रुप ऑफ स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स। ये लक्षद्वीप हो गया। ओके, फिर ये नॉर्थ में आपको हिमालयस दिखेगा। हिमालयस कैसे दिखेगा मैं आपको बता देता हूँ, आपको सेटेलाइट जूम कर देते। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है पूरा व्हाइट 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 व्हाइट, क्या है? नथिंग बट द स्नो। तो ये स्नो कहाँ से हुई? तो ये देख रहे हो, ये पूरे माउंटेन रेंजेस है ना? दिख रहा है कि नहीं? देख रहे हो? ये पहाड़ है, तो लग रहा है मैप में कितने छोटे हैं, बट एक्चुअल छोटे नहीं है। यहाँ पे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी है, क्या है उसका नाम? माउंट एवरेस्ट। ओके, चलो फिर उसके बाद और देखते हैं हम लोग। ये हिमालयस हो गया। ठीक है, हिंदू कुश देख लेना, हिंदू कुश यहाँ पे अफगानिस्तान में है पूरा। फिर ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे गंगा, ये जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर है ये वाली। फिर यहाँ से जो आ रही है गंगा रिवर है ये पूरा, तो गंगा ब्रह्मपुत्र मिलके दोनों यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाते हैं। ओके, फिर ये अपना ईस्टर्न घाट्स हो गया, दिस इज द ईस्टर्न घाट्स, दिस इज द वेस्टर्न घाट्स, ये हमारे सब कोस्टल सिटी, दिस इज व्हाट द इंडिया इज लुक लाइक टुडे। ओके, बट पहले हमारा पाकिस्तान ये जो था ये भी पूरा इंडिया का पार्ट था, बांग्लादेश पूरा इंडिया का पार्ट था। ओके, चलो दैट्स फॉर इट टुडे।
मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। बाय बाय, एंजॉय।